Good morning, children. Today I am going to discuss attributes of data frame. So, what are the attributes actually? Attributes add the additional features. So, what are the attributes we can use in data frame? Number one is index, number two is columns, number three is axis, number four is d type, number five size, number six shape, then nd, empty, count, and transpose. So now I'm going to discuss one by one via practically. So carefully people have to see. Now this is Python ID idle. So the first one is index. What is the use of this index? Index will return the index. What are in index? Now here I have created one data frame so that I'm going to see. Name of this data frame is you can see here df1. Name of data frame is df1. So once I'm going to display df1 and then we will see it's working or not. Yes, this is the data frame. Okay, so now if you want to see the indexes, so what we have to do, simply print df1 dot index and then see the result. So what are the indexes? So indexes you can see here, mass, IP and data type ऑब्जेक्ट्स. डेटा टाइप ऑब्जेक्ट जो मैथ्स एंड आईपी जो है वो डेटा टाइप उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज कॉलम्स. सो कॉलम्स एट्रीब्यूट्स का काम क्या है? सो दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू फैच द कॉलम्स नेम. क्या करता है? कॉलम के नाम को फैच करता है. तो हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस वन? द सेम वे, प्रिंट df1 डॉट कॉलम्स. ध्यान रखेंगे कॉलम्स होता है यहाँ पर. एंड वी प्रिंट दिस वन, तो कॉलम नेम्स आर व्हाट 2018 and 19. You can see here column names are what 2018 and 19. So that's why it displayed here 2018 and 19. The third one I'm going to discuss, that is access. ये access में बताता है यहाँ पर this attribute is used to fetch both index and columns name. यहाँ पर index and column दोनों दिखाता है यहाँ पर. तो how we can use this? Print df1 dot and when we print this one, so you can see index जो है आपका mass IP object है, and it means see the differences in column attribute only display the column indexes, and in access both indexes will be displayed, column indexes as well as row indexes. Next I'm going to discuss d type. So d type ये क्या करता है? डेटा टाइप दिखाता है. तो डेटा फ्रेम वी हैव प्रिंट df1 डॉट डी टाइप. तो इसका डेटा टाइप क्या है आप देख सकते हैं. 2018-19 आपका क्या था? इंटीजर है. तो लेकिन ये यूज कैसा हो रहा है? तो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है. नेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज साइज. Size attributes people know. This attribute is used to fetch the size of the data frame, which is the product of the number of rows and columns. Yes, जो size attributes है वो क्या करेगा? rows and column का जो है वो प्रोडक्ट करके दिखाएगा. So let's see how we can use this. Print data frame is df1 dot simply write size and see here 4. So how we can see the 2 rows and 2 columns are here, so 2 into 2 it will be 4.
Next I'm going to discuss save. Next one is save. ये save दिखाता है. How we can use this one? We have a data frame df1 dot shap save. ये ध्यान देने की बात है. साइज एंड शेप. साइज में क्या होता है, रोज एंड कॉलम का प्रोडक्ट करके दिखाता है. एंड यहाँ देखिए आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ पर सेपरेट करके दिखाएगा आपका कि रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं. तो ये डिफरेंसेस कभी आ सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे. नेक्स्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज एंडी. ये क्या काम करता है? दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू फैच द डायमेंशन ऑफ द गिवन डेटा फ्रेम. सो डायमेंशन भी रिटर्न, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, सीरीज 1 डायमेंशनल होता है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है. So how we can see data frame, if anybody will ask that how we can see, how we can know data frame is 2D two dimensional. So simply you can use df1 dot and now see it will be 2 dimensions, so result is 2. Next I'm going to discuss empty. तो empty काम क्या करता है? दिस एट्रीब्यूट गिव यू अ बूलियन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. ये सीरी और कोई एलिमेंट खाली होगा तो वह दिखाएगा कि हाँ ट्रू है, अदरवाइज ये क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा. तो अभी हमारा जो डेटा फ्रेम है प्रिंट df1 डॉट empty करेंगे. तो यहाँ पर देखिए सारे एलिमेंट्स हैं, एन वैल्यू नहीं है, तो दैट्स वाई रिजल्ट इज फॉल्स. एक इसके स्थान पर एक फंक्शन होता है. इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस एम्प्टी एट्रीब्यूट, सो देयर इज अ फंक्शन. दैट फंक्शन इज कॉल्ड is NUL. Not is NA. This function we can use. So how we can use this? Let's see. Yes, how we can use this is so print. We have a data frame. Which data frame we have? df1 dot is NA. Now when we print this one, so you can see there is no empty value, so that's why it's written false. The next attribute is count. इसका काम क्या होता है? This attribute gives the count of the item in the data frame. ठीक है, वो काउंट करके दिखाएगा आपका. इसमें आपका जो है 2 पैरामीटर होता है, 0 एंड 1 होता है. तो यदि हम इसको करें तो प्रिंट एंड काउंट, और यदि 0 पास करेंगे तो इसका मतलब जो है वह क्या आएगा? सॉरी, हम लोग डेटा फ्रेम इसमें यूज नहीं किए थे. प्रिंट df1 डॉट काउंट, और यदि हम यहाँ पर 0 देंगे तो ये क्या दे रहा है? 0 जो है वह क्या दे रहा है? काउंट करके दिखा रहा है. और 0 जो देता है वह कॉलम को दिखाता है. और यदि हम df1 डॉट काउंट 1 करते हैं तो वह रो को दिखाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉलम हमारा क्या था 2019, तो 0 पास करें तो काउंट में हम लोग 0 और 1 पास करते, 0 फॉर कॉलम एंड 1 फॉर रोज. सो नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रोज को कॉलम में चेंज करना. दिस एट्रीब्यूट यूज टू ट्रांसपोर्ट द डेटा फ्रेम. रोज और कॉलम में करने का काम करता है. तो हम लोग थोड़ा जल्दी देखते हैं बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर. सो df1 डॉट, और यहाँ पर करना क्या है? आपको केवल आपको यहाँ पर जो है वह यूज करना है जो हमारा ए है यहाँ पर. तो देखते हैं क्या देता है. नो सॉरी, इट विल वर्क और नॉट. नो, इट विल नॉट वर्क. सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? df1 इक्वल टू df1 डॉट टी यूज करना पड़ेगा. और यहाँ पर हम एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं, वह है 2. तो वो उसको क्या करेगा? ट्रांसपोज कर देगा. नहीं, इट्स नॉट वर्किंग.
df1